third life, fourth life. So we will be on the particular that you see. So these are the karmas. So how to keep ourselves totally aloof from this karma? We should learn this karma theory. We should learn this karma philosophy. And if we will learn this karma philosophy, we will be aware about that in all activities, you see. Now we have already this type of human being life. This is already in the Jainism. We take this birth in the Jain family. By birth we are Jain also. Now we must study about that. With the knowledge we will become as a Jain person. Then further you see you will become as a Sravaka. Then further again you will be as a sadhu, whatever you will, you are the seeker of that Jainism. So if we will try to our best, anyhow, if we will try our best, how to remove these karmas? If we are not removing these karmas, we are doing every activities according to our karmas. So very first of, in this 28 Mohaniya Karma Prakriti, first of all, this one is the Mithyatva Mohaniya Karma. Now we are taking our concentration on this Mithyatva Mohaniya Karma. What is that Mithyatva? Bolo, Vijay bhai, what is that Mithyatva? जी विपरीत मान्यता. Very good, huh? So, absolutely wrong belief, absolutely opposite mentality, you see. So, what type of that opposite mentality and why? Some of the people have the positive mentality, but some of the people they have totally opposite mentality. Why it is? What is the reason behind that? Only the reason is due to this mithyatva karma. In physical body, we are understanding that this type of, what type of these karmas are? In physical body, you see, sometimes we are suffering from any other disease. Some people are suffering from the cancer, heart disease, cholesterol, whatever type of disease. We can diagnose it easily with the help of some investigation. But if there is a karma on our soul, why should we cannot diagnose that, you see? So system of the diagnosis is only the simple. In our thoughts, in our words, in our language, in our all type of activities, we are going to wrong totally opposite from the all tattvas, atma, moksha, karma, punya, paap, bhagwan, guru, dharma. From all if we are going totally wrong, then it will happen, you see. So let us know about this, what type of the Mithyatva karma is. And if it is connected with the Anantanubandhi Kasai. So with this Anantanubandhi Kasai, you see, it will be connected with the Mithyatva. In this our life, this is our very first effort, you see, how to reduce this karma and then how to destroy this karma. The first of that, the reduction. तो ये what type of these कर्मस आर, अब ये सारे कर्म हमारे साथ आ रहे हैं, जन्मों जन्म से आ रहे हैं. See here this type of mithyatva karma. What type of the time limit here you see? You can know that this is the Sittir Koda Kodi Sagropa. Sittir Kodakodi Sagrupam, it is the maximum time limit of the Mithyatva karma. It is connected, bounded with the Anantanubandhi Kasai. Due to that, the time limit of this is very long, very long. अब क्या होगा, इतने 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक ये कर्म हमारी आत्मा पर रहेगा. We will take the next life, we will take the third life, we will take the fourth life. So many thousand, lakhs and crores of life we will finish, you see, but that mithyatva karma will not finish.
This Monia karma having the time limit of the Sitter Kodakodi, 70 Kodakodi. Here is the particular noun. You see what is Kodakodi in the sense multiply by the crores and crores, multiply by again the crores and crores. बोलिए निखिल जी, what you want to ask the question? हाँ साहब जी, ये जो 70 कुराड़ कोड़ी सागरोपम का जो लाइफ स्पान है मिथ्यात्म मोहिनी कर्म का आत्मा पर, वो उसकी इफेक्ट यूजुअली मनुष्य की लाइफ है उसमें ही पड़ेगी, राइट? क्योंकि तिरेंज को तो ऐसा ज्ञान नहीं है कि नहीं, the life, what type of life you are taking, that is not important. ओके It is bounded with the Atma, the soul, you see. The soul is going, either it may be go in the animal life, either he may go in the heavenly life, either he may go in the hell life, wherever you see. No doubt you are saying that the animal have no that type of knowledge, but their mentality with the soul, it is the same. The karma prakriti, it is just carry forward in all the next life. Because who is taking the birth? The soul is taking the birth. Who is going from one gati to another gati? The soul is going. So always the karma is going with the soul, not with the physical body. बट साहब जी, उसकी जो साइड इफेक्ट है कि मैं भगवान में नहीं मानता, रिलीजन में नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, वो तो मनुष्य जन्म लेगा तभी वो कहेगा ना कि मैं ये सब नहीं मानता. Not necessary. Because in animal life, even in the ekendriya, doindriya, tendriya, chaurendriya, panchendriya, they have in that, you see, in mind. In their soul, you see, this is the mentality with them. So they are also thinking in the same way. Either they are not thinking, but their mithyatva, monia, karma is with them. Even Mahavir Swami says, Simandar Swami says that nigodh में भी जीव का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म साथ में ही है. एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चौरेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में, ये सब के अंदर उनकी मान्यता बनी हुई है. जी साहब जी, ये मान्यता उनके साथ में ही है. तो वो सुख के अंदर जो अपनी बुद्धि बनाई है, जिस तरह से जैसे बुद्धि बनाई है, तो वो उसके अंदर रहने ही वाली है. अब उनको आत्मा का बोध नहीं है, ये मिथ्यात्व है. आत्मा, परमात्मा, भगवान आदि किसी विषय का बोध ही नहीं है. न कोई ज्ञान है, न कोई समझ है, न कोई श्रद्धा है. बस वो अपने शरीर के साथ, अपने सुख दुख के साथ जुड़े हुए, वही उनका मिथ्यात्व मोनी है. ऐसी बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम जैनिज्म में एंटर हुए हैं बाय बर्थ, यू सी, तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य ये हो गया. अब ये मुख्य कर्तव्य हो गया कि कैसे हम इस कर्म को पहले समझना तो पड़ेगा. टू लर्न दिस कर्म फिलोसॉफी, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस कर्म फिलोसॉफी. इट इज ओनली द पर्पस इज दैट टू डायग्नोज अवर सेल्फ. Here there are not the different type of diagnostic system of the MRI or X-ray or sonography or nothing. तो ये जो है, ये हमको समझना है यहाँ पर. तो here you see, we will see each and every living being in this whole universe, even about the heaven also. इसको दूर करो. अब हम ये भी आप देखेंगे, ख्याल आ जाएगा आपको कि ये इतना बड़ा जो 14 राजलोक है. अब इतने बड़े 14 राजलोक के अंदर आप ये देखेंगे हम तो इतने छोटे से मनुष्य क्षेत्र में हैं. तो ये मनुष्य क्षेत्र है, लेकिन ये तो ऊपर का बहुत बड़ा स्वर्ग है ना. अब इतना बड़ा जो स्वर्ग है, वहां तो है कौन है? वहां तो सिर्फ देवी देवता ही है. तो स्वर्ग के अंदर वहां पर जो है, ये देवी देवता वहां पर रहते हैं. अगर आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, इतने बड़े स्वर्ग के अंदर
इतनी असंख्य की संख्या में देवी देवता हैं, तो वहां पर मिथ्यात्व है कि नहीं है? बिल्कुल भगवान को न मानने वाले, धर्म को न माने देवी देवता है, बहुत अच्छे, हमारे से उनकी लाइफ बहुत अच्छी ज़्यादा है, उनको अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन ज़्यादा होता है, सब कुछ है। लेकिन सिमंदर स्वामी ये कहेंगे कि देवी देवताओं के अंदर 90% मिथ्यात्व है, तो क्या करेंगे आप? वो भी एक बड़ी दुनिया है ना, बहुत बड़ी दुनिया है ये। इतना जब हम आप कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तब ख्याल आएगा, 7 राज लोक की बड़ी दुनिया है ये, बहुत बड़ी दुनिया है। स्वर्ग है, देवलोक जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा देवलोक के रूप में है। अब यहाँ पर असंख्य देवी देवता रहते हैं। आप सोचोगे कि मनुष्य में से ही तो देवलोक में गए। हाँ, बात सही है, लेकिन कुछ पुण्य उपार्जन करके चले गए। Such type of the merit you see, then each and everybody can go to the heaven, you see. असंख्य देवी देवता है, लेकिन इतने असंख्य देवी देवताओं के अंदर भी वहां पर जो है 90% मिथ्यात्व है। क्या करेंगे सोचिए। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है, अब ये नीचे, यहाँ से नीचे उतरे के नीचे ये नरक है साहब। ये 7 राजलोक आप देख रहे हो, ये नीचे नरक क्षेत्र है, हेल जिसको हम बोलते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है, ये भी 7 राजलोक है, ये भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो वहां पर भी ये पहली नरक, यहाँ से दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, ऐसे वहां पर 5 नहीं 7 नरक है। ये 7 नरक क्षेत्र है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि महावीर स्वामी कह रहे हैं यहाँ पर 7 नरकों में असंख्य नारकी जीव है। अब वो सब संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य की तरह से वहां पर जो है वो नारकी के रूप में ही रह रहे हैं ऐसा। अब आप ये सोचिए कि सैनिक महाराजा इस समय यहाँ पर पहली नरक के अंदर ये सैनिक महाराजा का जीव है। वो क्षायिक सम्यक तो यहाँ से लेकर गए, इसलिए सम्यक दृष्टि। But what about the all? तो महावीर स्वामी कहेंगे हाँ जी साहब, 99% वहां पर सब मिथ्यात्वी जीव है। अब एनिमल्स तो कहाँ है? हमारे मनुष्य क्षेत्र में एनिमल्स है। और ये जो आप देख रहे हैं असंख्य द्वीप समुद्र जो है यहाँ पर सब जगह पर है। तो ये यहाँ पर जो है बहुत सारे असंख्य द्वीप समुद्रों के अंदर एनिमल्स वगैरह काफी है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो सब अनंत जीव है। अब सभी मिथ्यात्वी है। संगनी पंचेंद्रिय एनिमल्स के अंदर कुछ प्रतिशत सम्यक दृष्टि बनते हैं, ना नहीं है, बहुत अच्छे बनते हैं। अब कर्म है, कर्म अपने साथ में है। अब जीव जिस प्रकार के अब वहां पर गए और वहां पर कर्म लेकर गए हैं, तो ये का ये यही पिक्चर सेम वहां पर भी है हमारा। कर्म प्रकृति तो यहाँ से लेकर गए, या देवलोक से कोई मनुष्य में आए तो फिर वापस कर्म प्रकृति साथ में ले गए। It is regularly it is happening. Some of the heavenly deities, those who are coming here in the human being kshetra, human area, they are taking the birth, you see. So many human beings also going to the heaven regularly after the death. Some of the heavenly deities, they are coming in the animal life. So many animals also going to the heaven. This is the birth and death cycle, you see. According to this cycle, it is happening regularly. So many people are going to the hell after the death. What they have done, different type of sinful activities, jiva, hinsa, violence, whatever, due to their karma, they are going to the hell, you see. तो क्या करेंगे? जैसा कर्म किया है तो गति तो उस हिसाब से होनी है। एक एक्सेप्शनल है कि सैनिक महाराजा क्षायिक सम्यक तो ले गए, श्री कृष्ण ले, बाकी सब का केंद्र में तो अनंत जीव है।
अब ये जो हमारी जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल चल रही है ना, ये साइकिल जो हमारी चल रही है, अब ये है निगोद के जीव, इसमें अनंत जीव है, यहाँ पर इनफिनिट नंबर्स ऑफ द जीवास आर हियर। अब यहाँ से एक जीव कोई बाहर निकले और ये जीव संसार के चक्र के अंदर स्पॉटलाइट का कैसे आज आवाज आ रही है? जी आ रही है महाराज साहब जी। हाँ जी, वो क्या है, नेट के प्रॉब्लम है थोड़े से, तो ये अच्छा वहाँ तो कोई नहीं बरोबर। स्पॉटलाइट का बोलो ना, स्पॉटलाइट। हाँ जी विजय भाई, स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट जरा देखिए। जी व्हाइट बोर्ड पे आपको चेंज करना है, हाँ आपको चेंज करना है आपके साइड से, व्हाइट बोर्ड से आप अपना चेंज कर दीजिए। स्टॉप शेयर करेंगे, स्टॉप तो फिर आ जाएगा। हाँ थैंक यू, अब ठीक है। हाँ जी, व्हाइट बोर्ड आ गया वापस। तो ये जो अभी आई एम टॉकिंग, दिस इज द बर्थ एंड डेथ साइकिल which is going on continue, this is going on. Now in this continue constant, so in this four gati, regularly, constant and continue, each and every living being in this universe going on continuously. But if you are here and you have that type of mithyatvamonia karma with you, you will just carry forward with the next life. Same karma will come again in the next life. Same karma will come again in the next life. Same karma. This is the karma prakriti. Now in which gati you are going, that is not important. Everywhere this karma prakriti is continued. And due to this time limit, you see, once we have started from here, so we are again this carry forward all this karma prakriti everywhere, you see. So the time limit of this, it is 70. Kuda kudi sagropam. And see that now today we are here in the Manushya Gati. See, this is, we are in the Manushya human being form. And fortunately we taken this birth in the Jain life, Jain family. We become as a Jain by birth. Now if we will not understand this karma prakriti, then it is not possible for us to destroy this karma prakriti and to get the Samyak Darshan will very difficult. तो कैसे करेंगे हम? आज हमारे लिए सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये है कि हम जैन कुल में जन्मे, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस वोकेबुलरी ऑफ द सोल एंड मोक्ष एंड आत्मा एंड अदर तत्वज, you see. So first of all, we will learn this thing. If we will learn this thing, you see, then we will do anything. Otherwise, not possible at all.
In 28 type of Mohniya karma, very first we have to reduce this Mithyatva Mohniya karma, and there is the only way for the Granthi Bhed. What happened? What type of this Granthi you see? We know that this is the Mithyatva and this is the Anantanubandhi Kasai. One thread you see, this is Mithyatva Mohniya karma. So what happened with that Mithyatva? Everything become Viruddha Viparitata. And see, this is the Anantanubandhi Kasai. So due to this, you see what karma. So this is the Granthi, you see. Particular, the name we can say this is Granthi. In our language we can say गांठ. ये ऐसी एक गांठ बन गई है, इतनी भारी गांठ बन गई है. And this Granthi, it is always coming in all in different life, birth and death cycle, everywhere, everywhere. अब ये जो कर्म की साइकिल चलती रहेगी, तो अब आज हमको पहले ये समझना है कि what this Granthi is, what type of this Granthi. One side from the Mithyatva opposite belief you see, and another side is अनंतानुबंधी कसाय. तो कसाय क्या कर रहा है और ये मिथ्यात्व क्या कर रहा है? ये अनंतानुबंधी कसाय ये आपकी पकड़ और मजबूत बनाता जाता है. एक तरफ इधर जो है ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व ने बुद्धि विपरीत कर ली. आपने बोलना शुरू कर दिया, नो आई एम नॉट बिलीविंग द गॉड, नो आई एम नॉट बिलीविंग द सोल, नो आई एम नॉट बिलीविंग द सॉल्वेशन, नथिंग. ऐसे पकड़ के रखी, अब उसको छोड़ने को ही तैयार नहीं. One small child you see just taking the one sweet thing another hand, and he is taking the chappal also in the another hand, and both the things are touching with each other. So if you people will go and you will convince the child, please don't touch your chappal to this type of sweet, give me this sweet, either you can give the chappal inside, you see. But the small child will cry, no, 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 no. So the small child will cry and he is not ready to put this thing sweet or the chappal, both the thing which is in hand. तो क्या करेंगे हम? अब इसके कारण ये जो परिस्थिति आई है, अब इस परिस्थिति में क्या हुआ है कि इधर आप ये देखेंगे ऑल द साइड, ये चारों तरफ जो है ये अनंतानुबंधी क्रोध है, और इधर ये सेकंड अनंतानुबंधी मान है. इधर ये आप देखेंगे अनंतानुबंधी माया है, और ये है अनंतानुबंधी लोभ. अब ये चारों कसाय हैं, तो ये चार कसाय जिस तरह से जितने प्रमाण में बढ़े हैं पहले हैं, अब इन कसायों के बीच में ये अंदर जो है आपका मिथ्यात्व मोहनीय यहाँ पर है. ठीक है. अब ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय जो है, अंदर हमारा ये मिथ्यात्व है. Today I am giving the name of Nemchand Bhai Hemchand Chheda जो है, he had already sent this whiteboard here you see, and we are using, see, with the help of whiteboard I am just explaining everything with this diagram.
आई एम गिविंग द थैंक्स टू द पर्सन हेमचंद भाई छेड़ा। बहुत सारी बात है आपका जो ये भेजा हुआ साधन है कि जिसका उपयोग करके आपको क्लास में समझा रहे हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है अंदर तो हमारा मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व जितना सॉलिड होता जा रहा है, अब ये मिथ्यात्व इतना सॉलिड होकर के इतना भारी ये कर्म हमारा बन चुका है। अब चारों तरफ से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का प्रमाण अब इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इधर सामने से आप ऊपर देखेंगे हमारा अनंतानुबंधी कसाय इतना ज़्यादा सॉलिड होता जा रहा है। अब ये कैसे करेंगे हम? बहुत अच्छी बात है विजय भाई, आप भी छेड़ा जी को जो है अनुमोदना करते हुए धन्यवाद दे रहे हो। तो ये जो कर्म हमारे साथ बना है सर, अब इस कर्म की टाइम लिमिट हमारे आत्मा के साथ जुड़ गई, अनंतानुबंधी कसाय बन गया। अब ये ग्रुप हो गया एक, ये ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं कि ये मिल करके ये ग्रंथि बना है। अब आत्मा के ऊपर ये कर्म की प्रकृति चिपक गई आत्मा प्रदेशों पर। अब इसकी टाइम लिमिट आपको जो बता रहे हैं वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपण। एंड द पर्सन वी हैव द लाइफ स्पान, वो हमारे आयुष्य कर्म के हिसाब से चलता है। और ये चल रहा है कोड़ा-कोड़ी सागरोपमों की। नाउ टुडे वी हैव द लाइफ स्पान ऑफ ओनली 100 years, and this type of karma prakriti is about the 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम। अब in this 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, if you according to the 100 years life, you see lakhs and crores and crores life will be finished, but this karma will not finish. आयुष्य तो रेगुलर है, हमने जन्म लिया है वहां से हमारा तो आयुष्य चल ही रहा है। चलते चलते आयुष्य कर्म जितने प्रमाण में उपार्जन किया, the day will come, we will die, you see, 100 years will be finished. Or if there will be the accidents or attack, you see, there may be it will finish at the age of 50, 60, 70, whatever be like this. But what about this mithyatva mohniya karma? This karma will not destroy, and we were not reducing also this karma, and due to this karma this granthi is become more and more solid, you see. Again and again today you see it will, I am not believing the soul, I am not believing the God. I don't know what happened at that time, who will say that Mahavir Swami was happened or not. Just you are using only the 2 sentences and you are just increasing of this karma regularly. If you are doing this karma here, you see. तो ये क्या हो रहा है कि ये कर्म हमारा और इसका लेयर बढ़ता जाएगा, बस और कुछ नहीं। We will increase the layer of this karma in every life, in every time, you see. तो ये क्या होगा, अब ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। Already the 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम्स time limit is inside, and again the second karma, the layer of that, the second layer, the third layer, the fourth layer, the fifth layer, the sixth layer, the seventh layer. How many layers are on the soul also? And each and every layer have the different type of the time limit. अब उसका क्या करना, अब ये कर्म तो आत्मा के साथ जुड़ गया। अब परिणाम इस कर्म की सजा एक ही है, जस्ट मूव इन द बर्थ एंड डेथ साइकिल। जस्ट आप इस बर्थ एंड डेथ साइकिल के अंदर घूमते जाइए। ये जन्म पूरा हुआ, ये जन्म पूरा हुआ, अब आप एक जन्म, दूसरा जन्म, ऐसे करते 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 अब कितने जन्म मरण होते जाएंगे सर।
आज हम जा करके सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, मैंने कितने जन्म बिताए, कितने भव हो गए। अब सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी है, इसलिए हमारे लिए संख्या बता देंगे कि हे जीव, संसार में हमने अनंत भव बिता दिए, अनंत जन्म बिता दिए। अब इन अनंत जन्मों के अंदर में मिथ्यात्वी रहा, बिल्कुल रहे साहब। ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की ग्रंथि, ये ग्रंथि हमारे साथ रही। अब आप सोच लिए, आप गए कहाँ पर? देवलोक के अंदर देवी देवता भी बने। अब स्वर्ग में इतने ऊंची टॉप क्लास में जा करके वहां देवी देवता बने, लेकिन देवी देवता बनने के बाद भी अब वहां पर हमारे तो कर्म वैसे ही रहे। अब हमने जन्म तो लिया, कई बार देवी देवता के रूप में जाकर के जन्म लिया, लेकिन कर्म जो था वो कर्म एज इट इज साथ में। अब आयुष्य वहां का पूरा होगा, देव गति के अंदर देवी देवताओं का आयुष्य पूरा होगा, वो वहां से वापस आएंगे, फिर वापस यहाँ से तिर्यंश गति में, नरक गति में जाएंगे, फिर नरक गति से फिर देवी देवता मनुष्य के भव में आएंगे, फिर वापस स्वर्ग में जाकर देवी देवता बनेंगे। ये बर्थ एंड डेथ की साइकिल हमारी अनंत 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 जन्मों तक चलती रहेगी। हाउ वी विल स्टॉप इट? ये साइकिल जैसे बोलते ना आप, एग्स एंड चिकन, यू सी, एक बर्थ एंड डेथ की साइकिल चलेगी तो हु कैन से दैट हु इज द फर्स्ट, आइदर द चिकन और द हैंस यू सी और द एग यू सी, कौन है? ये कंस्टेंट एंड कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, चक्कर चलता ही जा रहा है। क्या कारण है? Fortunately now we came in this human life and we take this birth in the Jain family. Why should not to learn this philosophy? You see, कर्म फिलोसॉफी अगर हम पढ़ने लग जाए, समझने लग जाए, तो only due to this कर्म theory, ये कर्म है, तो डायग्नोस करिए पहले कि इतना भारी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और इतना बड़ा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म हमारा है, इतना अनंतानुबंधी कसाय उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कब पूरा होगा? अब पूरा तो नहीं हो रहा है, ये उदय में आया। अब उदय में आया तो इसी कर्म के साथ में जो है फिर इसके और लेयर बढ़ते जा रहे हैं सब, और इसका लेयर कर्म का प्रमाण हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर लेयर उसका पहले का ऑलरेडी है या, लेकिन ऊपर से और हम डबल कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं, कभी पुण्य की बात, कभी पाप की बात, कभी के आत्मा की बात, कभी मोक्ष की बात, कभी कर्म की बात, कभी धर्म की बात, कभी लोक की बात, कभी अलोक की बात, एक टॉपिक सब्जेक्ट आते हैं, इन विषयों में ही ना कहना है बस। तो इसके कारण जो है ये हमारे लेयर इसके ऊपर चढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएगा। तो ये एक कर्म अपने आप में इतना स्ट्रांग होता जाएगा, ये कर्म आपका इतना स्ट्रांग होता जाएगा। अब ये कब, ये हमारा कर्म पूरा कब होगा साहब? ये कर्म क्षय कैसे होगा? तो ये मिथ्यात्व मोहनीय पर्टिकुलरली क्या कर रहा है? टोटली आपकी नेगेटिव मेंटालिटी बना रहा है। अब ये टोटल नेगेटिव मेंटालिटी बनती जा रही है, तो हमेशा उसका मानना, उसका बोलना, उसका विचार करना, उसकी मेंटालिटी, अब ये नेगेटिव मेंटालिटी रहेगी, मतलब बिल्कुल अपोजिट। नहीं, और जब भी बोलेगा वो, whenever he will speak the words or whenever he will think in his mind, same words will come. No, I am not believing the God. No, I am not believing the moksha. No, I am not believing Atma. No, I am not believing. Same mentality, negative mentality will be repeatedly again and again. Whenever he will go to the Devlok, Swarga, heaven also, but the mentality will be the same. आज हम जो प्रयत्न करें, टुडे वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस कर्म। तो ये क्या है? हमको अब ये अंदर जो आत्मा के साथ जो बंध गई है ग्रंथि, अब ये ग्रंथि, नाउ वी वांट टू ओपन दिस ग्रंथि।
इधर हमारा ये मिथ्यात्व है, इधर ये अनंतानुबंधी कसाय है। अब ये गांठ खोलना है, जस्ट टू ओपन दिस ग्लैंड। If we are suffering from the cancer gland, you see, we will go for the surgery. What the surgeon will do? He will just cut down that gland from other part, you see, it will remove it. Now here you see, not the another surgeon will come. We have to do by our own self. ये हमारे हमको ही करना पड़ेगा. Before to do this, we must get the proper knowledge about all the things. You will get the proper knowledge about the soul, you will get the proper knowledge about the God, you will get the proper knowledge about the salvation and all other tattvas also. After doing, after getting that knowledge, clear cut knowledge, then we will think over it and we will remove just this granthi. And how much percentage we will remove, you see? Is it possible for us to remove the 100%? Then it will be the Kshaik Samyukta. But today if we will just open the gland and get the 5%, 10%, 20%, that is called the Kshayopashamik Bhav. But that will be, if we will do this, you see, this karma grantha, karma prakriti granthi, it is possible today also. Don't say that nowadays the fifth era is running, in this fifth era how it is possible, not possible at all. Don't think like this. Fifth era is not the obstruction for this. You see, we can open this. It is possible for us. ये तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है. पहला काम, सबसे पहला काम यही करना है. वेरी फर्स्ट ये करेंगे तो ही आगे पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ये मुझे आपको समझाना था. अब आप अपनी तरह से, इफ़ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप जैसा भी उचित लगते हैं. अब इसका डिटेल हमको बहुत समझना पड़ेगा, बहुत इन वेरी डिटेल. यू सी, एक मैंने थोड़ा सा जस्ट एक थोड़ी सी मोहनीय कर्म के अंदर की एक आउटलाइन आपको दी. इतनी कर्म प्रकृतियां हैं इसके अंदर, और अब इसको समझ करके हम एक में से एक करके, तो पहला हमारे हाथ में एक ही बनता है, मिथ्यात्व मोहनीय कैसे घटाना है. और ये ग्रुप बन गया है 3 + 4 = 7. ये जो मिथ्यात्व मोहनीय, फिर सम्यक्त्व मोहनीय, फिर मिश्र मोहनीय, फिर अनंतानुबंधी कसाय. अनंतानुबंधी कसाय के अंदर ये 4 जो मैंने आपको बताए हैं, ये 4 में आपको अलग अलग ये 4 के अंदर अनंतानुबंधी क्रोध है, ये मान है, ये माया है, और ये लोभ है. चारों साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए 4 है. 4 का फिगर जो दिया है वो क्रोध, मान, माया, लोभ के हिसाब से. हाँ जी विजय भाई, चलिए. जी, questions. Any please, if anybody has questions, can you please? લાસ્ટ ટાઈમ અવાજના પ્રોબ્લેમને હિસાબે મારો રહી ગયો હતો ક્વેશ્ચન, કે આપણે જે 7 લાખ પૃથ્વી કાય 7 લાખ અપકાય બધું બોલીએ છીએ ને, એમાં નારકી અને દેવતાનું આપણને કેવી રીતે, હવે આપણે અત્યારે મનુષ્ય પર્યાયમાં છે, તો આપણે કેવી રીતે એને હણી શકીએ છીએ? એનો દોષ લાગે છે કેવી રીતે? માનસિક વિચારથી. કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ આપો ને સાહેબ. માનસિક વિચાર તમે બોલ્યા કે આઈ એમ નોટ બિલીવિંગ એની દેવી દેવતા or નારકી or nothing. મનથી, માનસિક વિચારથી વિરાધના થઈ. નથી માનતા એમ કે આઈ એમ નોટ બિલીવિંગ એમ. there is no heaven, there is no स्वर्ग, नवी देवता, तो फिर आप उसके हिसाब से ही बोलेंगे, उल्टा चलेगा. એમાં હણિયા પણ કેવા, આપણે હણિયા હણાવ્યા બોલીએ છીએ. મનથી, વચનથી, કાયાથી, તો ત્રણે છે ને પાછું સાથે, એટલા મન, વચન, કાયા, બસ. हाँ, बोलो विजय भाई. Any other questions? Any other questions, please?
साहिब जी इज आस्किंग। साहब जी एक प्रश्न नहीं है, लेकिन जरा मुझे पूछना था। आपने लास्ट टाइम 18 पापस्थाना का किया था, तो उसमें 18वां जो था वो मोहनीय था, तो मोहनीय सॉरी मिथ्यात्व था, तो वो आप अभी डिटेल में ले रहे हैं, ऐसे समझ सकता हूं मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। That is when we are in practical doing that means that is papasthan. And when due to that papasthana the soul is bounded by that karma, then you have to use the mithyatva mohaniya karma. But there in papasthan 18वें पापस्थान में आपको 18वें मिथ्यात्व शल्य, अब वहाँ पर आपको मिथ्यात्व पापस्थान के रूप में है। और यहाँ ये हो गई आपके लिए कर्म बंधक प्रकृति। तो जब हमने कर्म बांध लिया है, अब वो बांधने के बाद अब आपके साथ में ये जुड़ करके ये कर्म की प्रकृति बन गई है। ये है कर्म की प्रकृति। हाँ बोलो गिरीश भाई। अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। या प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट हाँ सर, हाँ अनम्यूट कर दिया अभी साહેબ। હા, આપણે જૈન તરીકે જન્મ્યા છીએ, નાનપણથી આપણે નવકાર મંત્ર પૂજા બધું મિકેનિકલી કહો કે જે કહો તે મા બાપે શીખવાડી છે આપણને, અને મોટા થયા પછી આપણામાં રહ્યું પણ છે। પણ ઘણી વાર શું થાય છે, મોટા થયા પછી આપણે દેવ દેવીઓની ભક્તિ કરવા માંડીએ છીએ, બીકના કારણે કહો કે કોઈ કહે એટલે કે આપણા કુળદેવી હોય દાખલા તરીકે તો એ બધું ખબર નથી પડતી એ મિથ્યાત્વી કહેવાય કે એ મિથ્યાત્વી ન કહેવાય। नहीं, कुल देवी હોય તો કોઈ મિથ્યાત્વ કહેવાની જરૂર નથી। બરાબર છે। હા, देवी देवताओं ऑलरेडी in the Jainism which is said, you see, they are the सम्यक दृष्टि। So they are the सम्यक दृष्टि। मानवीर है, भैरववीर है, पद्मावती है, धर्मेंद्र है, these are the सम्यक दृष्टि देवी देवता। But you are not believing them as शंकर और भगवान नहीं कहता आपने। तो देवी देवता के रूप में ही है। ऐसा हमारे भी फोर फादर्स है, हाँ जी, थोड़ी बोलेंगे हम। फोर फादर्स है, फोर फादर्स के फोर फादर्स ना थोड़ी बोल रहे हैं उनको। वो भी है तो सही ना क्यों बोलेंगे। लेकिन हाँ અને उनको भगवान ने हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। Any other આપણે questions? સાહેબજી એમ માનીએ કે આ દેવી દેવતાને મારું સમજો આપણને કોઈ રોગ આવ્યો હોય કે જે કઈ આવી તકલીફ, તો આપણે એવું માની લઈએ કે દેવી દેવતાઓ આપણને તકલીફ આપે છે કે, તો એ બધું તો આપણને દોષ જ કહેવાય ને, કોઈની પર બ્લેમ કર્યું હોય તો। બસ આપણે કર્મ સંજોગે છે ને, એટલે દેવીતાઓ સામે કર્મના નિમિત્તે માને છે। भाई आप हाँ साहब जी, मथेणु दामी, आपने जो 3 और 4 का जो भाग पढ़ा उसमें मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, उसमें जो दूसरा सम्यक्त्व मोहनीय है दैट वो अगर उसका जो कर्म का आवरण पड़ा है तो वो सम्यक दृष्टि लेने नहीं देगा, राइट? सम्यक दृष्टि पामसे नहीं जल्दी। सम्यक दर्शन के अंदर भी उसको जो है डाउटफुल मेंटालिटी रहती है। ओके, नेगेटिव मेंटालिटी इज ओनली फॉर द मिथ्यात्वमोनिया, बट द पर्सन हैविंग दैट फेथ इनसाइड द माइंड स्टिल हैव सम डाउट इन दैट। क्या ये सब बात हो सकती है? क्या महावीर स्वामी था कि थया था कि नहीं? हाँ। और साहब जी तो वो उसके सम्यक तो होने के बाद भी डाउटफुल मेंटालिटी नहीं जा रही है। गॉट इट। और साहब जी मिश्र मोहनीय वो इज इट कंसीडर्ड 50-50 के 50? दोनों को मिक्स करता है। हाँ, 50-50, राइट साहब जी? यस, आज महावीर स्वामी की भी पूजा करेगा, कल शंकर जी की करेगा, कल और करेगा, कल बोलता है साईं बाबा की पूजा करो, कोई कल कुछ किधर करेगा। क्योंकि अब किसी को घर में कैंसर हो गया तो क्या करना, किसी को घर में कोई तकलीफ आ गई तो इधर से उधर, उधर से इधर, वो सबको मिक्स करता है। ये तकलीफ है। नहीं बोलता है ऑल आर द गॉड, आई बिलीव ऑल द गॉड्स, यू सी, ऐसा करता है।
So if someone says ke God is one, only one, there is one God, everybody, it's all equal, so that's મિથ્યાત્વી completely. Right. Okay. સાહેબજી બીજો ક્વેશ્ચન છે 18 પાપસ્થાનકમાંથી. તો 18 પાપસ્થાનક we understand કે બધા જ કર્મોનું જે મૂળ છે એનાથી બધા કર્મ, મૌન્ય કર્મ જે બી કોઈ બધા એનાથી ઉદ્ભવે છે. પણ 18 પાપસ્થાનક में भी સાહેબજી પાંચવા જો પરિગ્રહ है, is it true કે is it considered the father of all 18 પાપ? नहीं, मिथ्यात्व is the mother of the root cause, you see. Okay, got it. Anyone else has questions? पर साहब जी मिथ्यात्व में समझ गए, परिग्रह अगर नहीं छोड़ा तो वो बहुत सारे पाप भी कराएगा, राइट? वो कराएगा, वो बात अलग है. सम्यक दृष्टि होने के बाद भी परिग्रह रहता है. परिग्रह इतना बड़ा मिथ्यात्व का कारण नहीं बन रहा है ना. समझता है वो, धीरे धीरे त्याग करेगा, छूटेगा, बहुत कुछ विसर्जन करेगा, छोड़ेगा. एवरीथिंग इज पॉसिबल, नो डाउट. लेकिन मिथ्यात्व जो है दैट इज द मदर ऑफ रूट कॉज ऑफ ऑल द अदर पापस्थान एंड ऑल अदर कर्मदान. तो साहिब जी परिग्रह जो है वो कैसे कनेक्ट होता है मिथ्यात्व से? सो मिथ्यात्व है जीव, बट वो परिग्रह कैसे करने लगता है? तो रखेगा ना, इसमें क्या हो गया? अभी मिथ्यात्व के पास परिग्रह है, सम्यक दृष्टि के पास परिग्रह है. सम्यक दृष्टि श्रेणिक महाराजा, he became as a क्षायिक सम्यक्त्वी and having the whole big kingdom in sea. He was the great emperor at that time and very big kingdom was there, you see. That is different thing. वो पुण्य प्रकृति है ना उसके हिसाब से, पुण्य के हिसाब से बहुत कुछ होता है, नो डाउट. बोलो आरती बहन. अच्छा सर. हाँ, મથેણા મદામી સાહેબજી, આપણે જૈન ફેમિલીમાં બોર્ન થયા હશે તો કદાચ થોડું ઓછું થયું હશે મિથ્યાત્વ અને આપણું ગાંઠ જે છે. no. If you are in a Jain family, that is your good merit, you see. But if you have the type of mentality, you are studying about that, all the philosophy and tattva and soul and Tirthankar and God and everything, then it will reduce. Otherwise, not possible, you see. So many people have taken the birth in the Jain family, but still they are not doing any effort for this, you see. They are going opposite from this thing. So it is not family. Though only to take the birth, it is not that much sufficient, no? Try to yourself to get rid from this type of mithyatva karma prakriti and to understand what the Tirthankar is, what the God is, what type of the soul is, what is the salvation. If you will learn about each and everything, because there is the only solution to get the Samyak Jnana, Tattva Jnana. This is the only solution for this. प्रश्न और किसी को प्रश्न है? साहब जी प्रश्न हो गए. चलिए. नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोके सर्वसागुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्. मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलम सोलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं
जयति शासनम्। वंदामी साहब जी वंदामी खूब और खूब खूब उपकार, आप सुख साता में रहे, ऐसी हमारी भावना है। कथेण मंदामी साहेब जी सुख शांता में रहेगी। साहिब जी आई थिंक वीणा बेन आप नेक्स्ट टाइम वंदना कर रहे हैं ना? निखिल भाई करने वाले थे ना, मालूम नहीं। आई थिंक समरी आपकी थी ना इस टाइम, तो आपने बताया था कि वंदना करने। हाँ, तो आप जैसे आप बोले निखिल भाई को करने का वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं करती हूँ, विजय भाई मारे नेक्स्ट सैटरडे टेम्पल में अंतराय कर्म पूजा बनावવાની છે, એટલે आई वुड नॉट बी एबल टू जॉइन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली। सॉरी। ओके देन आई विल डू इट। हाँ, थैंक यू। और કીધું તો ને કે આરતીબેન કરજો સમરી। हाँ, आरतीबेन समरी करશે, because Maharaj Sahib has said that. So Artiben, are you? I think Maharaj Sahib has already told you, so there is no option. So please do the summary next time. And next time we will again ask for the volunteers. Maybe Nikhil Bhai can do the following time, and we'll figure out. Yeah, that's fine. After that is fine. Thank you all for coming. Jai Chandra, Pranam, and have a good weekend. I'm going to end the meeting.